today at day 17, we have to start some more concept about the directors. Hope audio and video is clear. Okay. Now, section 196. After 160 to 167, there is one more section which we need in correlation to this is 196. Section 196 talks about MD, whole-time director, manager. MD, whole-time director, manager. So, now, section 162 was saying no one can become director if he has these disqualifications. Section 167 said that if you are director, you cannot hold, you can't hold that position in following situation if it occurs. And then comes section 196. It says, sir, if you are whole-time director, if you are managing director, kindly do the needful which is given under 196 also. It means a managing director and whole-time director will not be, their appointment will not be completed, their qualifications and disqualifications will not get completed unless they are not complying with 196 along with section 164 and 167. 164, 167 along with 196, these three combinations are required to be and to remain as a managing director and whole-time director. If you want to be as a managing director, if you want to remain as a managing director, if you want to be a whole-time director, if you want to remain as a whole-time director, you need to comply with 196 also. Section 196 says that no company shall appoint or employ at the same time a managing director and a manager. आप मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर को सेम टाइम पर अपॉइंट नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट अपॉइंट अ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इन अ कंपनी एट द सेम टाइम. मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी कि यार या तो मैनेजर रख लो या मैनेजिंग डायरेक्टर रख लो, क्योंकि दोनों की फंक्शनिंग एक ही है. जब हमने मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर की सेक्शन पढ़ी थी तब मैंने बोला था कि एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक ही रहेगी. तो एक कंपनी में या तो आप मैनेजर अपॉइंट कर लो या आप मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर लो. मैनेजर अपॉइंट करना इजी है क्योंकि वो डायरेक्टर नहीं होता तो उसे जब भी निकालना हो जब भी लाना हो बड़ा आसान होता है. क्योंकि किसी को डायरेक्टर बनाने के बाद आप बड़े परेशानी में पड़ सकते हो. सर आप किसी को डायरेक्टर बना दोगे, उसके बाद डायरेक्टर बनाने के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. So no company shall appoint or employ at the same time a managing director and a manager. Managing director और manager जो है shall appoint or employ same time. आप managing director और manager नहीं बना सकते, पहली बात. दूसरी बात, no company means no company. ऊपर भी था no company means no company. No company shall appoint or reappoint any person as managing director, whole-time director or manager for a term exceeding 5 years at a time. कोई भी whole-time director, कोई भी managing director, कोई भी manager, कोई भी होल टाइम डायरेक्टर, कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई भी मैनेजर एक बार में 5 साल से ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता है. माइंड इट कम के लिए हो सकता है. हमारी कंपनी ने एओए में लिखा है मैनेजर का कार्यकाल 2 साल का रहेगा. 2 साल बाद फिर कंसीडर करेंगे कि उसका अपॉइंटमेंट होगा कि नहीं होगा.
हाँ तो करो ना, हर 2 साल में रीअपॉइंट कर लो उसको, जीवन भर 2-2 साल में रीअपॉइंट करते हुए चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हारे एओए में अगर ये लिखा रहेगा कि इसका कार्यकाल 6 साल करेगा और ये रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा, तो हम मान ही नहीं सकते सर, पॉसिबल नहीं। It is not at all possible to have a whole-time director or a managing director or a manager to be appointed for more than 5 years. More than 5 years के लिए आप अपॉइंट नहीं कर सकते. Provided that no reappointment shall be made earlier than 1 year before the expiry of his term. ये भी एक कहानी। इनको हमने यहां पे एमडी अपॉइंट किया, सपोज 72nd एजीएम है जिसमें भाई को एमडी अपॉइंट किया गया, 73rd एजीएम यानी 1 साल, 74th एजीएम यानी 2 साल, 75th एजीएम यानी 3 साल, 76th एजीएम यानी 4 साल, 77th एजीएम यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। आपने इनको 72nd एजीएम में अपॉइंट किया था अप टू अ पीरियड ऑफ 77, मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर। अब आपको कहते हैं कि नो रीअपॉइंटमेंट शैल बी मेड अर्लियर देन 1 ईयर। एग्जैक्ट 1 ईयर बचा हो तो आप कर दें, बट नॉट अर्लियर देन 1 ईयर। वेरी गुड, मतलब मैं 76th एजीएम में अगर बंदे को अगले 5 साल के लिए रीअपॉइंट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। हां, कर सकते हो ना आप। इसको 5 साल यहां पे है, ये खत्म होने से पहले ही 4थे साल में आप चाहो तो उसको अगले 5 साल के लिए रीअपॉइंट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है बाय वेराइड रीजन आप चाहते हो कि आपके मैनेजिंग डायरेक्टर में जरा सा भी, इट्स अ वेरी की पोजीशन, आप चाहते हो कि इसमें जरा सा भी डिस्टर्बेंस ना हो, तो एनी टाइम, बट बिफोर 76th एजीएम यू कैन नॉट रीअपॉइंट हिम फॉर द नेक्स्ट टेन्योर। 5 ईयर से एक्सीड नहीं होगा कभी भी। जब आपने उसको 4थे साल में रीअपॉइंट कर दिया तो वो जो बीच वाले जो 5वां साल है वो उसका टेन्योर ही नहीं रहा, इट विल नॉट बी काउंटेड इन ए टेन्योर। नाउ 76th से 5 ईयर लूंगा मैं, आई विल नॉट काउंट 5 ईयर फ्रॉम 77th एजीएम, आई विल काउंट 76 से 5 ईयर, दैट इज देयर। 4 साल बाद आप उसको, 4 साल या उसके बाद आप कभी भी उसको क्या कर सकते हो, रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो। जब रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा तो पुराना अपॉइंटमेंट तो कैंसिल ही हो गया ना, वहां से 5 साल। वेराइड रीजंस हैं। मान लीजिए ऐसा है कि 5th एजीएम तक आपको ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ पोलराइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स हु मे वांट टू, who may not want to reappoint that fellow, and the polarization is going on. Before that आपको लगता है कि नहीं, this MD must be continued for next 5 years, you can appoint him as the next 5 years MD. So simple. It depends आप क्या करना चाहते हो। MD है, होल टाइम डायरेक्टर है, उनके लिए ये प्रोविजन दिया गया है। कोई बहुत ज्यादा लॉजिक तो उसका है नहीं, बट ठीक है, you can appoint earlier than 1 year but before the expiry of his term, provided that no reappointment shall be made earlier than 1 year but before expiry of the term. Once his term is expired, can we reappoint him? Now my question to you, his term has been expired, and we want to reappoint him as a managing director, as a whole-time director.
Can I? Can I? हेलो, यस और नो? अभी तो हमारी नींद ही नहीं खुली है सर, आप क्या पूछ रहे हो? अरे मैं पूछ रहा हूं भाई साहब, दैट नो कंपनी शेल अपॉइंट और रीअपॉइंट एनी पर्सन एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 years एट ए टाइम, प्रोवाइडेड दैट नो रीअपॉइंटमेंट शेल बी मेड earlier than 1 year before the expiry of his term. तो मैं earlier than 1 year before the expiry of the term एक साथ पढ़ूं कि ये पढ़ूं earlier than 1 year but before expiry of the term? बेटा यहां अगर but लिख देते ना तो मैं बोलता कि नहीं 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 नहीं, अब आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते। वो सेंटेंस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंस क्या है? अर्लियर देन 1 year, तो अर्लियर देन 1 year तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म के संबंध में कहा जा रहा है। आप एक्सपायरी ऑफ द टर्म के बाद भी मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। एज सच देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी होल टाइम डायरेक्टर्स रीअपॉइंटमेंट। और 5 साल बाद अगर आप वापस रीअपॉइंट करना चाहते हो तो 5 एक्सपायरी हो गई टर्म की, तो 5 साल खत्म हो गए, अभी वो 1 साल आराम कर रहा है। 5 साल की टर्म थी, 1 साल भाई ने आराम कर लिया, उसके बाद वापस आना चाहता है तो ले आओ ना, कौन मना कर रहा है? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टर्म तो रीअपॉइंटमेंट हो ही नहीं पाएगा। मतलब इफ ही कंटिन्यूड अप टू 5 years देन हिज ऑफिस विल बी वेकेटेड एज सच। 5 साल का उसका टेन्योर है ना, तो 5 साल बाद उसका ऑफिस ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगा, इट वुड बी वेकेटेड। उसके बाद आपको रीअपॉइंट करना है तो कर लो, कौन मना कर रहा है? मैं वो पूछ रहा था। चलिए कोई बात नहीं। नाउ 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 नो कंपनी शेल अपॉइंट और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन एज मैनेजिंग डायरेक्टर or a whole-time director or a manager. No company shall appoint. Here appointment includes reappointment or continue, मतलब आपके पास पहले से डायरेक्टर है तो बोल रहे कंटिन्यू। No company shall appoint or continue the employment of any person as a managing director, whole-time director or manager who is below the age of 21 years or attain an age of 70 years. Below the age of 21 years. 21 साल से पहले नहीं। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए 21 ईयर्स ही है। लड़कियां 19 साल न समझे, वो किसी अलग कारण के लिए। 21 ईयर्स से कम अगर आप हैं, आई एम सॉरी, आप डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है। पॉसिबल नहीं। और हैज अटेन एन एज ऑफ 70 years, आप 70 years के लिए हो गए। अपने आप को संभालिए जनाब, कंपनी न संभाल पाएगी अब। एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, एज अ होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर, क्या बात कर रहे हो? लोग 70 साल बाद देश संभाल लेते हैं, आप कंपनी नहीं संभालने दे रहे हो। मना थोड़ी किया है। अगर आपको लगता है कि 70 साल का बंदा अभी भी दमखम रखता है और शानदार रूप से कंपनी चला सकता है, तो कोई दिक्कत थोड़ी। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, प्रोवाइडेड दैट अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन हु हैज अटेन्ड एन एज ऑफ 70 years may be made by passing a special resolution, in which case
Explanatory statement annexed with the notice for such motion shall indicate the justification of appointment of such person. ओह, 70 साल के आदमी से ऊपर किसी को अपॉइंट करना है तो भैया नोटिस ऑफ द मीटिंग में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगा। 2 दलीलें कि क्यों तुम्हें 70 साल से ऊपर का आदमी चाहिए। यस, 70 साल से ऊपर का आदमी तुमको चाहिए क्यों, उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाओ उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। उसके बाद अब दामिनी पूछ रही है कि 21 साल से कम वाले के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लें क्या? बड़ा अच्छा क्वेश्चन सर। 21 साल से कम वाले के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसको होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर बना दें क्या? तो बंबई से आया है एक क्वेश्चन जिसका जवाब देंगे बाकी सारे लोग, चाहे वो श्रीगंगानगर हो, चाहे फिर वो दिल्ली हो, चाहे कहीं से भी। जल्दी बताओ। मैंने कहा आपकी एज 21 इयर्स से कम है तो क्या हम उसे स्पेशल रेजोल्यूशन से डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। 70 इयर्स के ऊपर के लिए आप स्पेशल रेजोल्यूशन ले सकते, पॉसिबल नहीं। ओके, नाउ 70 इयर्स से ऊपर है तो, और 70 का एग्जैक्ट है तो सर आज उनका 70th बर्थडे है। अच्छा, क्या कर रहे हो? अपॉइंट कर रहे होल टाइम डायरेक्टर। कल 71 हो गए तो कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी कि नहीं? 5 साल तक चलेंगे। अरे ओ लाइव बैच, जरा जवाब तो दो, कुछ पूछा मैंने तुमसे? जिसने 70 साल की एज अटेंड कर ली उसको तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन से अपॉइंट कर पाओ। भाई वो 69.5 के अपॉइंट कर ली और 69.5 में अपॉइंट कर लिया और 5 साल के लिए, वेदर अपॉइंटमेंट इज वैलिड? भाई 69.5 के हैं, होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया 5 साल के लिए, इज इट राइट? गौरव कह रहा है अपॉइंटमेंट इज वैलिड। 5 साल के लिए कहां से वैलिड है? ऊपर तो लिखा है नो कंपनी शैल अपॉइंट और कंटिन्यू एज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर हु अटेन्स एन एज ऑफ 70 ईयर्स। अपॉइंटमेंट तो वैलिड है। कैसे वैलिड है? 5 साल का अपॉइंटमेंट थोड़ी वैलिड है। आधे साल बाद ही कैजुअल वैकेंसी हो जानी, क्या बोलते हो? हो जानी चाहिए कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी हो जानी है क्या? सर एक काम करो ना, 69.5 का है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगवा के वहीं उसका स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के उसको बोल दो कि अभी तो 69.5 के हैं बट 70 के ऊपर हो जाएंगे, इसलिए इनको हम अपॉइंट कर रहे हैं। कैन वी डू दिस? कैन वी डू दिस? यस, वी कैन डू दिस।
अदरवाइज वो जो अपॉइंटमेंट करने के लिए जो 5 साल का रेजोल्यूशन है ना, 69.5 में 5 साल का, वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा. दैट रेजोल्यूशन वुड बी वाइड. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं किसी को? एवरीवन गुड. प्रोवाइडेड फर्दर दैट no such special resolution is passed, but vote cast in favor of the motion exceeds the vote if any cast against the motion. Central government is satisfied on the application made by the board that such appointment is most beneficial to the company. The appointment of the person who has attained an age of 70 years may be made. भाई अभी एलओडीआर जब लेके आऊंगा तो वहां पे कुछ और भी पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना. सेबी एलओडीआर के अंदर लिमिट अलग है. भी डायरेक्टर्स की लिमिट को सेबी एलओडीआर के साथ तो कंपेयर ही नहीं किया है, वो एक अलग लफड़ा है. डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट होते ही मैं सेबी एलओडीआर उठाऊंगा और सेबी एलओडीआर पूरा डायरेक्टर होने के बाद तुरंत सेबी एलओडीआर करेंगे, ताकि सेबी एलओडीआर और इनके बीच में भी डिफरेंस हो जाए. वहां पे आप 75 ईयर पे भी कूद काट सकते हो. बात करते हैं अभी उसके, एलओडीआर बाद में आएगा. बट ये सीए फाइनल है, यहां समग्र ज्ञान लेना पड़ता है एक ही साथ. तो सेबी एलओडीआर भी इधर ही आपको लिखवा दूं मैं, कट. अपनी कॉपी तो अपन बना ही रहे, कॉपी के आगे लिखते जाएंगे कि यहां पे ये है सेबी एलओडीआर में, यहां पे ये है सेबी एलओडीआर में, यहां पे ये सेबी एलओडीआर में, ये खत्म. नाउ 21 ईयर्स 17. अब एक प्रोविजो तो दे दिया, उसके बाद दूसरा प्रोविजो और ऐड करवाया कि मान लो स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, लेकिन वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द मोशन एक्सीड्स कर गए वोट्स इफ एनी कास्टेड अगेंस्ट द मोशन. और सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने अप्लाई कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, कि स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास नहीं हो पाया साहब, लेकिन रेजोल्यूशन पास हो गया था. और देखिए, कंपनी के सबसे अच्छे बेनिफिट के लिए जरूरी है कि यह आदमी मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर बने. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो गई तो 70 साल से ऊपर वाले को सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे देगी. तो 70 साल या उससे ऊपर, 70 साल मत बोलो, 70 साल या उससे ऊपर बोलो, 70 साल या उससे ऊपर, एंड बिलो 21 चलेगा. अभी 201 सेक्शन भी आएगी बेटा, रुको आऊंगा उस पर भी, दैट वुड ऑल्सो गो. अभी तो शेड्यूल 5 भी आएगा, रुको तो सही. 21 ईयर्स और 70 ईयर्स ये ब्रैकेट दे दिया. और 70 साल से ऊपर करना है तो या तो कौन सा रेजोल्यूशन पास कर लो, स्पेशल रेजोल्यूशन, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हो पाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आ जाओ. ओके. हाय. Is an undischarged insolvent or has at any time been adjudged as insolvent. कोरिलेट करो उधर से. $164 once, 196, 167 में भी वो एज इट इज अभी
अरे वो तुम लोग मेरे साथ दिमाग चलाते हो या सिर्फ मैं बोल रहा हूं बस उतना ही सुन रहे हो? क्योंकि मैं यार सिंक करना चाहता हूं, मेरे दिमाग से आपका दिमाग सिंक होना चाहिए। क्या ये पेंटर जीटर थोड़ी है यार कि ठीक है यार देख लेंगे, और सिंक करो। और जो पेंटर जीटर देख रहे वो अब सिंक करें मेरे साथ, 1x2x में न चलाएं। इन विचारों को 1x2x कुछ नहीं करना पड़ता है। गौरव सेम नहीं है, गौरव भाई बहुत भयंकर लफड़ा है। गौरव भाई वहां लिखा हुआ था कि किसी ने स्वयं के लिए दे रखा हो एप्लीकेशन, तो वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर वो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया तो वो डायरेक्टर तो बन सकता है, लेकिन किसी भी बार एक बार भी कलंक लग गया तेरे ऊपर इंसॉल्वेंसी का साले, तू मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर नहीं बन पाएगा। भले डिस्चार्ज हो गया मुझे मतलब नहीं, एक बार कलंक लगा तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर नहीं बन पाएंगे। अब सुनिए अगली बात, बंदे ने सेल्फ पिटीशन दे रखी और वो चाहता है कि उसे मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाए। भाई मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए पहले तेरे को डायरेक्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि तेरा सरनेम डायरेक्टर है, तो तेरे को 164(1) तो फॉलो करनी पड़ेगी। तो तूने अगर सेल्फ पिटीशन दे रखी है मेरे खुद के इंसॉल्वेंट होने की, तो भाई तू नहीं बन सकता है डायरेक्टर, है ना? तू डायरेक्टर ही नहीं बन सकता, तो होल टाइम डायरेक्टर छोड़ो, होल टाइम डायरेक्टर छोड़ो तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। पर एक बंदा बोल रहा है भाई साहब मैंने पिटीशन दे रखी है कि मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए, मैं मैनेजर बनना चाहता हूं। भाई आप उसे मैनेजर बना लो, लिटरली कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पे वो कंडीशन आई नहीं कि उसने अभी एडजस्ट नहीं हुआ है लेकिन उसने एप्लीकेशन दी है। और 167 में भी यही है कि आप अगर एप्लीकेशन दोगे तो ऑटोमेटिक वेकेशन होगा कि नहीं होगा। हाँ, पहले 167 में भी तो कंप्लीट करें कि बंदे ने एप्लीकेशन दे दी तो ऑटोमेटिक वेकेशन था कि नहीं था। कि एक देश जो हम तो फिर ही करेंगे। पहले मेरे को 167 के बारे में क्लियर करो, उसके बाद आऊंगा मैं 196 पे। तो मुझे 167 के बारे में यह क्लियर करो कि एक बंदे ने डायरेक्टर अपॉइंट होने के बाद एप्लीकेशन दे दी कि साहब मैं इंसॉल्वेंट हो रहा हूं कोर्ट, तो क्या उसी दिन से वो ऑफिस वेकेट माना जाएगा? हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस, क्योंकि 161 का कुछ भी, 164 का कुछ भी करोगे तो 167 में ऑटोमेटिक वेकेशन में आओगे, सिवाय वो DEF जो थे, D और EF भी नहीं था। ओके, अब यहां ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत बारीक क्वेश्चन। बंदा डायरेक्टर था, होल टाइम डायरेक्टर था,
मैनेजिंग डायरेक्टर था। ओके, एप्लीकेशन दे दी, ऑटोमेटिक वेकेशन हो गया डायरेक्टर के ऑफिस से। हाँ, तो यहां पे ऑटोमेटिक वेकेशन होगी। अब तू जब डायरेक्टर ही नहीं रहा तो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर कैसे रहेगा? तो भाई तू डायरेक्टर ही नहीं रहा तो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर कैसे रहेगा? लेकिन भाई तू हमारा मैनेजर अपॉइंटेड था, मैनेजर नॉट डायरेक्टर, मैनेजर अपॉइंटेड था, डायरेक्टर अपॉइंटेड नहीं था। और वो मैनेजर ने अपनी सेल्फ पिटीशन लगा दी कोर्ट में, भाई फैसला हो जाने दे फिर तू चले जाइयो, क्योंकि तू डायरेक्टर तो है नहीं, है तो मैनेजर, चलने दे। क्योंकि तू जिस दिन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाएगा, मतलब डिक्लेयर हो जाएगा, उस दिन तो तेरा वेकेशन क्लियर है। ए बी, भाई तू कंटिन्यू रहे, तू मैनेजर है यार, तू डायरेक्टर नहीं है, तू होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, तू मैनेजर है, कंटिन्यू रहे, तेरी सेल्फ पिटीशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे कुछ भेजे में गई, अभी नेशनल समस्या बनाऊंगा इसको, मैं राष्ट्रीय समस्या बना के डालूंगा आज रात को, आज शाम को फिर डालूंगा लॉ ट्विस्ट, आज से फिर चालू करूंगा। मैनेजर, आप कंपनी सेक्रेटरी जाके पूछ लो, क्यों भैया वो मैनेजर 2 बार पढ़ना पड़ेगा उनको, बहुत क्लियर है, बहुत बारीक पॉइंट है। और अभी मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके तो बताऊंगा इंस्टीट्यूट कैसा खोदता है। तो यहां पर ध्यान रखना, मैनेजर कंटिन्यू रह सकता है, बाकी नहीं तो। Has any time suspended payment to his creditor or makes or has at any time made a composition with them? अबे क्या कर रहे हो बे? एक ईएमआई बैंक की थी, लोन चुकाया नहीं, लोन का डिफॉल्ट हो गया, 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, वापस कंटिन्यू कर। हाँ जी, लोन की ईएमआई 2 डिफॉल्ट कर, फिर कंटिन्यू कर दी, कैन आई रिमेन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर? बोलो बच्चों बोलो, कुछ तो बोलो। नैन्सी तो कह रही नहीं कर सकती, कि पहले के लिए बोल रही नहीं कर सकती, तो समझ में नहीं आता कौन सा क्वेश्चन बोला। अभी तो बोली बाय डिफॉल्ट हुआ, 2 बार का डिफॉल्ट हो गया, क्या करें तुम तो ये बताओ। 2 टाइम्स डिफॉल्ट, उसके बाद वापस रेगुलर हो, तो क्या करें? चले जाएं? क्या उसको सस्पेंडेड बोलेंगे बेटा? अरे क्या उसे सस्पेंडेड बोलेंगे? बेटा सस्पेंडेड का मतलब होता है पेमेंट करना बंद कर दिया, है ना? वो सस्पेंडेड नहीं कहलाता। एक आध इंस्टॉलमेंट इधर उधर हो गई, ईएमआई बाउंस हो गई, पैसे नहीं थे, वापस दे दिए, उसको डिफॉल्ट बोल सकते हो। उसको सस्पेंडेड पेमेंट, उसके मतलब क्रेडिटर बेचारा रो रो के परेशान हो गया, तुमने उसको पेमेंट ही नहीं दिया है। अच्छा, यहां पे लोन नहीं लिखा हुआ, प्रॉब्लम यह है
अब इस शब्द का इंटरप्रिटेशन कुछ भी निकल सकता है। क्रेडिटर मतलब लेनदार। नाउ वेदर क्रेडिटर इंक्लूड्स लोन, इट्स अ बिग डील, है ना। तो इस पे अपन बात करेंगे। अभी आप सस्पेंडेड वर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करो। सस्पेंडेड मतलब पेमेंट करना बंद कर दिया है, और मेक्स और हैज एनी टाइम मेड कंपोजिशन विद देम। तो बेटा क्रेडिटर में तो सभी आना चाहिए। मेरा ओपिनियन तो है क्रेडिटर इंक्लूड्स ऑल, वेदर लोन, वेदर एनीवन। क्योंकि जब आप एक छोटी सी चीज के लिए, मतलब अगर आप नहीं लोन छोड़ दो, ये तो गुड्स का क्रेडिटर है, ठीक है, बड़ी चीज छोड़ दो, छोटी चीज पकड़ रहे हो। बोले डायरेक्टर तू 3 करोड़ का लोन का डिफॉल्ट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू 3,000 रुपए के क्रेडिटर का डिफॉल्ट का तो तू डायरेक्टर नहीं बनने देगा। कौन पागल ऐसा इंटरप्रिटेशन करेगा? टेल मी। तो भाई अपन तो बिंदास लिख के आएंगे, लोन में डिफॉल्ट मतलब पे ही नहीं कर रहा भाई, एनपीए हो गया अकाउंट, होल टाइम डायरेक्टर का अकाउंट एनपीए हो गया है, बैंक से कुर्की के आदेश आ गए हैं, और मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा है 10 लाख तो ना दे पाऊंगा, 6 लाख रुपए में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दो। बैंक ने कहा ला बाप 6 लाख ही दे दे, जाने दे, हो गया कंपोजिशन। समझौता कर रहे कर, किसी भी क्रेडिटर के साथ कंपोजिशन किया हो भाई साहब, निपट गए आप। यू कैन नॉट बी ए होल टाइम डायरेक्टर, यू कैन नॉट बी ए मैनेजिंग डायरेक्टर, यू कैन नॉट बी ए मैनेजर। बहुत क्लियर। आगे बढ़ू। एनी टाइम, अपॉइंटमेंट के पहले, अपॉइंटमेंट के बाद, एनी टाइम। सर पहले था, अब सब कुछ क्लियर कर दिया। नहीं, आदतन अपराधियों को मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर नहीं बनाया जाएगा। आदतन नहीं है सर, कैजुअल तो भी नहीं बनाया जाएगा। कलंकित लोग नहीं आ पाएंगे। ये इंसॉल्वेंट हो गया था, भाग जाए, होना ही नहीं। और जो क्रेडिटर का पेमेंट नहीं बहुत बुला उसको हटाओ, कंप्रोमाइज करके आए क्रेडिटर्स, और भैया कंपनी को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में ले आए, हटाओ, लाना ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ऐसे आदमी का एमडी बनना, होल टाइम डायरेक्टर बनना या मैनेजर बनना। पार्ट टाइम डायरेक्टर बना लो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना लो, सस्पेंडेड वाले को बना लो, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को बना लो, ले आओ सबको, रिहेबिलिटेशन सेंटर बना दो साला कंपनी को। हाँ कर लो, अब तुम्हारे को इतनी शौक है इन लोगों को रखने का तो रखो। शेयर होल्डर तुमको एनुअल जनरल मीटिंग में परमिशन दे दे तो रख लो, कौन मना कर रहा है? ओके ठीक है। हैज एनी टाइम मान डाला, बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट of an offense and sentenced for a period of more than any time, being convicted by a court of an offense, यहां नहीं लिख रहा moral turpitude or any other offense। गौरव भाई ध्यान दिया जाए, कल आप मेरे से एक बात कर रहे थे, मैंने कहा बताऊं, आ जाओ जरा। मोरल टर्पिट्यूड कहां गया वो, और एनी अदर, ये तो ऑफेंस लिख रहा है यार, सीधा ऑफेंस, कोई सा भी, कंपनी एक्ट का भी। भाई जरा आराम से,
तो अब हमको 164 के अंदर जब क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे सर, तो बहुत क्लियर है कि 164 ने आपको कहा कि अगर आपने क्या किया है, किसी भी तरीके का मोरल टर्पिट्यूड और अदर, वहां मोरल टर्पिट्यूड और अदर लिखा हुआ है और यहां कुछ और है ना। तो अब मोरल टर्पिट्यूड और अदर को क्या करें? देखो सर, मोरल टर्पिट्यूड यानी किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, उसको कहते हैं मोरल टर्पिट्यूड। और उसके साथ उन्होंने लिखा अदर ऑफेंस। तो अब अगर मैं मोरल टर्पिट्यूड को लूं तो मोरल टर्पिट्यूड अपने आप में एक क्लास है, अब उसके साथ एक और क्लास कौन सी लाऊं? तो अदर क्लास, अदर ऑफेंस को क्या मानूं? मैंने रेल में बिना टिकट यात्रा कर ली, क्या मैं उसको मोरल टर्पिट्यूड और अदर ऑफेंस में लूं? गौरव भाई ध्यान दें अब आप, मैंने बिना टिकट यात्रा की, मुझे पकड़ लिया गया और 7 महीने की सजा सुना दी। बोलो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी के डायरेक्टर हो, विदाउट टिकट यात्रा करते हो, तुम्हें हम निपटा देंगे, नहीं चाहिए मुचल का, तुम तो 7 महीने की जेल में जाओ। ध्यान दें, एक व्यक्ति विदाउट टिकट यात्रा करता है, 7 महीने के लिए कहां जाता है? जेल जाता है, कन्वेक्ट किया जाता है। वो आदमी चाहता है कि वो बन जाए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और वो आदमी चाहता है कि वो बन जाए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जवाब दें अब आप, ये है आपका अगला राष्ट्रीय प्रश्न। दोनों जगह नहीं बन सकता, ऐसा नैन्सी का कहना था। गौरव भाई आपका क्या कहना है? सोचो सोचो, जल्दी नहीं, अपने आराम से सोचो, दोनों जगह देख लो, दोनों का बेयर उठा लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट आज जवाब तो मैं लेके जाऊंगा आप ही से। जल्दी जवाब तो आपसे ही चाहिए। गौरव भाई बोल रहे दोनों जगह पॉसिबल नहीं। देखिए ऐसा है कि अर्स्टवाइल कंपनीज एक्ट था अपने पास, उसके अंदर
कुछ चीजें डिफाइन की हुई थी। और उसमें एक बार कंपनीज एक्ट में जब इस टर्म की बात आई थी तो कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल 2014 आए थे। उसके अंदर उन्होंने जो बंदे को अपॉइंट करने की बात आई थी कि आप जब अपॉइंट करेंगे तो हाउ वुड यू अपॉइंट द फेलो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। पुराने कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ओल्ड कंपनीज एक्ट के रिलेशन में कहीं कुछ आया था। तो द वर्ड्स और अदरवाइज अपीयरिंग आफ्टर द मोरल टर्पिट्यूड, वो सेक्शन 274 और 283 ऑफ द कंपनीज एक्ट में कवर्ड नहीं थे। दे वर नॉट देयर इन सेक्शन 274 एंड 283 ऑफ द ओल्ड एक्ट, दे वर ओनली कवर्ड मोरल टर्पिट्यूड। अब ये जो एक्सटेंडेड कवरेज आ गया है, इसके अंदर हम कौन से ऑफेंस ले लेंगे? तो इनका कहना है कि देखो, या तो एनी ऑफेंस लिखते हैं। अब जब तुमने एनी ऑफेंस नहीं लिखा तो तुमने लिखा मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। तो मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज को हम क्या कंटेन करें? तो अब तक जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं उनका कहना है कि यहां पे मोरल टर्पिट्यूड है तो क्लियर है। अब मोरल टर्पिट्यूड को एक केस लॉ में डिफाइन भी किया गया था बहुत पहले, दैट इज बालेश्वर सिंह वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। मोरल टर्पिट्यूड को उन्होंने डिफाइन किया था दैट एनीथिंग अगेंस्ट मोरलिटी, जस्टिस, ऑनेस्टी, मॉडेस्टी एंड ऑल दैट। और मोरल टर्पिट्यूड को दे हैव डिफाइंड इन अ वेरी वाइडर वे। तो अब मोरल टर्पिट्यूड और एनी ऑफेंस आ जाने के बाद, अदरवाइज आ जाने के बाद, उस अदरवाइज को उन्होंने डिफाइन किया, मतलब एक्सपर्ट्स डिफाइन करते हैं कि उसमें सारे नहीं आएंगे। उसमें क्या आएंगे? सिर्फ कंपनीज एक्ट वाले ऑफेंस आएंगे, बाकी ऑफेंस नहीं आएंगे। ये एक्सपर्ट्स मानते हैं, अभी तक कोई सेटल्ड है नहीं, बट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उस अदरवाइज को आपको क्या लेना चाहिए? कंपनीज एक्ट। तो अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो मैंने एक पर्टिकुलर चेक किसी का दिया, वो चेक बाउंस हो गया, उसमें सजा हो गई, या दंगे बलवे में कहीं सजा हो गई, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किस एक्ट के अंदर गिर रहा हूं। मैं मोरल टर्पिट्यूड में गिर रहा हूं या मैं अदरवाइज। तो उन्होंने अदरवाइज को कंपनीज एक्ट लिया है। आई विल गिव साइटेशन ऑफ दैट ऑल्सो ऑन दिस स्लाइड टुमारो। मैं आपको अदर उसकी बात कर लेता हूं। लेकिन वहां पर कंपनीज एक्ट है, लेकिन यहां क्या है? एनी टाइम, और यह कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस। तो यहां जो एन ऑफेंस बात आ रही है, ये एनी ऑफेंस में सारे ऑफेंस क्लियर हो गए। तो भाई किसी भी ऑफेंस में 2 more than 6 months गया ना, तो तू एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर तो नहीं बन सकता। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि उधर मोरल टर्पिट्यूड एक चीज है और दूसरी चीज क्या है? सेकेंड वन इज एनी अदर। तो वो एनी अदर को वो लोग इंटरप्रेट करते हैं कंपनीज एक्ट के ऑफेंस। मतलब तुमने कंपनीज एक्ट के ऑफेंस नहीं किए हैं और मोरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस नहीं किया है, बाकी किसी ऑफेंस के अंदर तुमको क्या हो गई है? सजा। तो तुम पार्ट टाइम डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो। ये एक बारीक सा इंटरप्रिटेशन है, लेकिन अभी मैं अदरवाइज जो एक्ट्स हैं, अभी मैं उसको इसलिए आपको एक्सप्रेसली नहीं बता सकता क्योंकि शेड्यूल 5 के अंदर अभी अपन जब आएंगे तो वो बोलते हैं कि अगर ऐसे आदमी को तुम्हें डायरेक्टर अपॉइंट करना है जिसने
एमडी होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करना, उन्होंने ना 16 एक्ट की लिस्ट दी है, तो वो 16 एक्ट की लिस्ट पढ़ाऊंगा इस शेड्यूल 5 के अंदर जब, तो वो लिस्ट पढ़ाने के बाद समझा पाऊंगा मैं आपको कि अदरवाइज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। बट अभी इतना समझ लो, ये तो बोल रहे हैं एनी ऑफेंस, मतलब आप मैनेजिंग डायरेक्टर तो भूल जाओ, होल टाइम डायरेक्टर तो भूल जाओ, अगर उसने एनी टाइम बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर एन ऑफेंस एंड सेंटेंस फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 6 months है, तो गया, खत्म, उसे अपन होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर अपॉइंट नहीं कर सकते। पेंडिंग बात अभी अपनी क्या है, अदरवाइज क्या है। तो अभी मैंने आपको समझाया अदरवाइज मतलब कंपनीज एक्ट, अभी मैं आपको समझाऊंगा और ढेर सारे एक्ट, लेकिन वो आएगा शेड्यूल 5 में। तो गौरव भाई, होल्ड योर क्वेश्चन अगेन। नाउ अब मोरल टर्पिट्यूड के साथ कंपनीज एक्ट के ऑफेंस आते हैं, और मैंने अभी आपको जैसे बताया कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014 जो मैंने आपको बताया, चलो अब मैं उसको यहीं खत्म कर देता हूं टॉक को। लेट अस फिनिश दिस टॉक हियर ओनली, मैं उस पर ही चला जाता हूं। बताना ही पड़ेगा वो, नहीं तो आप है ना आज घूमते ही रहोगे, क्या करना है। अरे इसके अंदर एक है रूल 21S, कहां गया, लो भैया, अब इन्होंने यहां क्लियर कर दिया। ओह लो जी, फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 164 एंड क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 167 ऑफ द एक्ट और अदरवाइज मीन्स any offense in respect of which has been convicted by court under this act or Companies Act 1956। तो वो जो अदरवाइज उन्होंने दिया उसको उन्होंने क्या माना, कंपनीज एक्ट। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम मेरे पास कंपनीज एक्ट की नहीं है, प्रॉब्लम मेरे पास है कि किसको मोरल टर्पिट्यूड मानूं, किसको नहीं मानूं। तो व्हाट कुड बी कंसीडर्ड एज मोरल टर्पिट्यूड और नॉट, वो प्रॉब्लम मेरे साथ है। बाकी तो मैंने मान लिया था, लेकिन वहां पर तो उन्होंने कंपनीज एक्ट बोला, तो मैंने आपको क्या कंप्लीट किया कि अदरवाइज को आप क्या मानो यहां पर, कंपनीज एक्ट, तो वो तो ले लिया मैंने। और उसके बाद अभी मैं शेड्यूल 5 पढ़ाऊंगा, उसके अंदर बहुत सारे एक्ट आएंगे, वो कम से कम इतने सारे एक्ट है शेड्यूल 5 के अंदर जो खुद ही बोलते हैं कि अगर इसमें ऑफेंस किया ना तो इसको अगर डायरेक्टर बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके आओ, तो इसको एमडी होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर बना सकते हो। आएंगे अपने उस पर भी आएंगे, पर अभी 1 मिनट। सो व्हाट इज फाइनल कंक्लूजन? सर फाइनल कंक्लूजन 164 और 167 दोनों के लिए और अदरवाइज को अपन क्या मानेंगे, कंपनी से मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, और यहां क्या मानेंगे, एनी ऑफेंस। इसमें सिर्फ मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज नहीं, इसमें सारे ऑफेंस आएंगे। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो आपको ध्यान रखना है। ना एमडी को और होल टाइम डायरेक्टर को तो लग जाएंगे, मैनेजर यहां से बाहर हो सकता है। एमडी और होल टाइम डायरेक्टर को तो लग नहीं, वो तो मैनेजर यहां से बाहर हो सकता है। Subject to of the provisions of section 197 and schedule 5, a managing director, whole time director or manager shall
Subject to the provision of 197 and Schedule 5, a managing director, a whole-time director or a manager shall be appointed, and the terms and condition of such appointment and remuneration payable be approved by a board of directors at a meeting which shall be subject to approval by resolution at the next general meeting of the company and by central government in case of such appointment is varied in conditions specified in part 1 of the Schedule 3. मैनेजिंग डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, वो अपॉइंट होंगे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होगी of such appointment and remuneration payable be approved by board of directors at the meeting which shall be subject to approval by resolution. यानी board of director provisional appointment करते हैं, final appointment कौन करेगा? जनरल मीटिंग. ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एमडी को अपॉइंट नहीं कर सकते, वो सिर्फ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं. फाइनल अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? शेयर होल्डर. मैनेजर का भी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं कौन? बोर्ड. फाइनल अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? शेयर होल्डर्स. तो एमडी हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, इनका पूरा अपॉइंटमेंट अगर करना है तो फाइनली विल बी अप्रूव्ड बाय दी शेयर होल्डर. और अगर आपने शेड्यूल 5 के पार्ट फर्स्ट की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं किया तो भूल जाओ. सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेके आओ, फिर काम करना. अभी अपन शेड्यूल पे चलेंगे और अभी नहीं, अभी यही कंप्लीट. प्रोवाइडेड दैट a notice convening the board or a general meeting for considering such appointment shall include the terms and condition of such appointment, remuneration payable and other matters included in interest of the director or directors in such appointment if any. वो तो ठीक है, terms, condition, remuneration सब फिक्स करो. Provided further that a return in prescribed form shall be filed within 60 days from appointment with the registrar. registrar के साथ आप इसका फाइल कर दो विद इन 60 डेज. 60 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. वो तो सब ठीक है, कर देंगे. लेकिन कुल जमा कंक्लूजन 196 का क्या निकला और वो 167 के साथ और 164 के साथ कितना है? देखो सर, आप एमडी हो, आप होल टाइम डायरेक्टर हो, आप मैनेजर हो और आप पार्ट टाइम डायरेक्टर हो. एक मिनट. एमडी हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, पार्ट टाइम डायरेक्टर हो और मैनेजर हो. ये ले लेते हैं. एज चाहिए more than or equal to 21, less than 70. More than or equal to 21, less than 70. More than or equal to 21, less than 70. Sorry. More than or equal to 21, less than 70. Not applicable. यहां पर एज लिमिट नहीं है, but definitely minor cannot become part-time director because he would not have PAN. If he would have PAN, he could not have DIL. If he could not have DIL, he cannot be appointed as part-time director. चलो, एज क्राइटेरिया तो हो गया. दूसरा क्राइटेरिया था कि अगर आप, ये तो पहला क्राइटेरिया था जो एडिशनल क्राइटेरिया के रूप में अपने पास 196 के अंदर आया. देन अरे आ गया, हाँ, टेन्योर 5 ईयर, 5 ईयर, एनी 5 ईयर. टेन्योर के रूप में बहुत क्लियर हो गए. ओके.
164(1) अप्लीकेबल होगी, अप्लीकेबल होगी, अप्लीकेबल होगी। इसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि ये मैनेजर है, डायरेक्टर नहीं। इसका तो डायरेक्टर होना भी जरूरी नहीं है। 167, 164, 1, 2, 3 पूरी ले लो ना। 164 164 पूरी ले लो, 167 भी पूरी ले लो। मैनेजर अलग है, ये तीनों अलग है। ऑटोमेटिक वेकेशन है, मैनेजर अलग है। इसीलिए मैं आपको बार बार वहां से यहां लेके आ रहा था। तो मैनेजर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। आप एक ऐसी कंपनी के मैनेजर हो जिसने 3 साल से रिटर्न फाइल नहीं की, हो जाओ आप अपॉइंट, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, तो यू आर नॉट डायरेक्टर। सो माइंड इट वेरी केयरफुली कि एडिशनल रिक्वायरमेंट। अच्छा, अभी मेरे को शेड्यूल 5 भी लगाना है, पार्ट 1 इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा और इस पे लगेगा। शेड्यूल 5 का पार्ट 1 इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर नहीं लगेगा, इधर लगेगा। और मैं पावर ऑफ द बोर्ड पढ़ाने से पहले मैनेजरियल रेम्युनरेशन पढ़ा के खत्म कर दूंगा, क्योंकि उसको बेयर एक्ट से नहीं पढ़ना है। अपने को बेयर एक्ट से पढ़ना है सेक्शंस, लेकिन शेड्यूल 5 तो इतना बड़ा है कि उसको बेयर एक्ट से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको तो हम अपने पॉइंट्स बना के पढ़ लेंगे। तो वो मैनेजरियल रेम्युनरेशन वाला क्या है, वो फटाक से इधर कंप्लीट हो जाएगा, तो अपना एक टेंशन खत्म हो जाएगा कि चैप्टर नंबर 11 पढ़ लिया, फिर 13 पढ़ लिया, फिर 12 आराम से पढ़ेंगे। पहले 13 पढ़ के ये पूरा एक मतलब अपॉइंटमेंट और इनका रेम्युनरेशन, ये दोनों खत्म हो जाए ना तो टेंशन खत्म। इनके ऊपर इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, आप मानोगे नहीं। मैंने जब प्रॉब्लम सिलेक्ट करना चालू किए तो 46 नंबर के प्रॉब्लम से मैं चालू हुआ हूं, और मुझे आपको कल कितने प्रॉब्लम कराने ये आप सोच के सब लो। 69 तक जाऊंगा मैं। कल आप मेरे साथ कितने प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो ये ध्यान रख लेना। 46 से 69 तक you have to solve problems with me. Since my 1998 till November 19, 2019 जितने प्रॉब्लम्स हैं, सीए, मॉक टेस्ट, आरटीपी, इवन सीएस के कुछ अच्छे प्रॉब्लम भी ले लिए अपन ने, और सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ कंपाइल करके रख लिया है ना। अब मुझे आपसे एक होमवर्क चाहिए कि मुझे डीआईआर की टेबल कल चाहिए। कौन कौन से डीआईआर कहां कहां फाइल किए। डीआईआर 2 मैंने बताया आपको, डीआईआर 3 बताया आपको, डीआईआर 8 बताया आपको, डीआईआर 12 बताया आपको। मुझे डीआईआर की एक लिस्ट चाहिए पहले पूरी। तो आज आपका होमवर्क है कि डीआईआर की कंप्लीट लिस्ट बनाएंगे और फिर अपन उन डीआईआर को टिक करते जाएंगे, क्योंकि डीआईआर 9, डीआईआर 10 पूरे हो चुके हैं, लेकिन अपने अभी नॉलेज में नहीं लाया अपन। डीआईआर 9 और डीआईआर 10 वो थे, डिस्क्वालिफिकेशन आने पर डीआईआर 9 और जाने पर डीआईआर 10 वो भी है। तो अभी डीआईआर को भी अपन एक बार कंप्लीट कर लेंगे। तो कल सुबह पहले आके डीआईआर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ढेर सारे, ताकि क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस का पूरा मजमा खत्म हो जाए। फिर पढ़ेंगे रिमूवल, एंड मेरा ख्याल है डे 20 अपना जो टारगेट है कि भैया डायरेक्टर का ये वाला चैप्टर, दिस चैप्टर शुड बी कंप्लीटेड बिफोर डे 20, वो डे 20 पे खत्म हो जाएगा। 5 दिन, 4 से 5 दिन अपने को लगेंगे, मतलब डे 25 तक अपन चैप्टर 13 भी खत्म कर लेंगे, एंड देन इट विल रिक्वायर अनदर 15 days टू फिनिश
चैप्टर 12 पावर्स एंड बोर्ड्स बहुत जबरदस्त है। सो ये सारा अपना गणित है। डे 40 तक अपने तीनों डायरेक्टर जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अदरवाइज कंपनीज एक्ट तो ले लिया है, लेकिन अभी शेड्यूल 5 बाकी है। तो जैसे ही ये सेक्शंस खत्म होंगी मैं शेड्यूल 5 पे जाऊंगा सीधा, और वो शेड्यूल 5 को भी उठा के अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो चैप्टर 14 कंप्लीट कर लेंगे, फिर आएंगे चैप्टर 12 पे, विच इज बोर्ड मीटिंग एंड ऑल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप देख लो कि क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 69 तक मेरे पास है लगातार। So we have to solve 20 to 23 questions of varied exams. Then only this chapter will be over. तो अब अपन मिलते हैं कब? कल again at our time, and then we'll move ahead.